So beta, let us begin with the revision work pattern. So dear children, once again very good morning to you all and welcome you all. So we were to begin with our revision part. And am I audible to all beta? You can drop a small message beta. Am I audible to all? Fiza, Garima? Yes beta, dear children. Can you drop a small message? Am I audible to all? Yes. Mihir, Mayank. Okay, nice beta. Thank you. Let us start. So beta, we were to begin with the concept of beta. Our last time we were having magnetic dipole moment beta, and we were to begin with the current loop as a magnetic dipole beta. Current loop as a magnetic dipole. In our previous discussions so far, we many times have discussed that if the current, this is just a background concept beta, if the current in any coil is in the anti-clockwise sensitivity, then that particular coil, that particular side of the coil rather, it will behave like the north polarity. And at the same time beta, if the electric current in some particular coil beta, this is in the clockwise sensitivity, then that particular pole that will become beta south pole. So we are to take this thing into account and then we are to start with our discussions ahead with it. Imagine beta now that we have this current loop beta, and this is the loop carrying the current, imagine, in the anti-clockwise sense beta. And if the current carried by the clockwise or anti-clockwise sense as indicated in the diagram, here it is in the anti-clockwise sense, then with this pole, the top pole, it will be behaving like the north polarity and below it will be like the south pole. You can imagine that we have just a ring and the upper part is north pole, south pole is the lower part. And in this manner, magnetic dipole moment beta, it is from south to the north polarity. We have discussed it so many times. So magnetic dipole moment M of this particular coil, this is otherwise mathematically directly dependent upon the current and is directly dependent upon the area this loop is enclosing or the area of the loop, you can say. And M will be then equal to I into A. I being the amount of the current which is being passed between, and furthermore A, that is the area of cross section. So dear children, I and A, you can substitute for I and A separately also, that if I is having some particular value and A is having some particular value, we can arrange those values as such. So here, this is the magnitude of the magnetic dipole moment. And regarding the direction, it is from south to the north pole. So this was something very, very basic with it. Now the CBSE repeatedly asks you a simple and very important question, that what do we mean by the term Bohr magnetone, and what is the numerical value of Bohr magnetone and all that, and how we are able to calculate Bohr magnetone with that. So beta, let us start with the concept of atom as a magnetic dipole beta. Let us discuss this beta. Atom as a magnetic dipole. Magnetic dipole, as the name is indicating, di means two, pole means two poles, north pole as well as south pole.
if we focus upon the background concept, here we will not at all be taking into account the spin rotation or the spin motion of the electron. When we talk about the atom, we generally talk about the fact that the electrons are revolving in the orbit, maybe clockwise sense, maybe anti-clockwise sense, and that revolving electron is equivalent to a current loop. And when it is current loop, automatically the magnetic dipole moment will be there. But there is an other small concept that when the electron is considered to be spinning about its own axis, electron is spinning anti-clockwise or clockwise about its own axis, then due to the spin motion of the electron, again the magnetic dipole moment will be possessed by the given particular atom beta. So whatever is the number of electrons present in the atom, we generally what we do, we calculate the one particular electron revolving in that particular orbit. We treat it like the current loop. Second possible option is that we consider the spin motion of the electron also. Here in our syllabus, we will not at all be focusing upon the spin motion. We will just focus on the orbital motion of the electron only. So consider orbital motion of the electron. Imagine beta once again that here this is our orbit in which electron is revolving. Imagine furthermore that your electron is revolving in the clockwise sense, and here let us further imagine that this is the axis or this is the rather center of the given orbit. Small r you can consider to be the radius of this orbit. If the electron is moving in the clockwise sense, obviously the electric current beta that can be considered to be the opposite to this particular electron's motion, because we take into account the electric current to be the opposite of the negatively charged particles. So I will be redrawing over here this electron. This causes this much particular type of C. This is now electric current loop equivalent to this beta. Electric current is flowing in this sense over here, and imagine that small r is the radius. When the electric current is in the anti-clockwise sense, upper pole it will be north, lower pole it will be the south pole, according to the considerations we have discussed just now. And the magnetic dipole moment beta, it is from south to north, and B, this is a magnetic field, or you can say that no need to calculate B, rather M is the magnetic dipole moment which we will have over here. Now furthermore, let us take into account over here our calculation of the Bohr's magnetone and all that beta. Let us try to find this out. When we take into account the orbital motion of the electron, suppose that we talk about the electric current I. Electric current I is equal to rate of flow of charge Q upon T. We over here can say that the charge on the electron Q is equal to simply E beta, E being the charge on the electron, and furthermore T is the time period which the electron will take in order to complete one complete orbital path. So over here when we consider this small t, this is your small t, we will say that this is equal to the time period, the time which the electron will take to completely describe the circular path. So your electric current, this electric current rather, I can mark this as I also. This is equal to E upon T. बहुत ध्यान से बेटे सुनेंगे, इलेक्ट्रॉन पूरा ऑर्बिटल पाथ कंप्लीट करेगा
the distance covered by the electron will be equal to 2 into pi into r, that is equal to the circumference of this orbit with it. So dear students, it can be put as t in place of t, this is 2 pi r distance covered, and it is divided by the orbital velocity of the electron. बेटे फिर से एक बार ध्यान से सुनिएगा, ये आपका इलेक्ट्रॉन का चार्ज है एंड दिस इज विद द टाइम पीरियड, द टोटल टाइम इलेक्ट्रॉन विल टेक इन ऑर्डर टू कंप्लीटली प्रेस्क्राइब वन कंप्लीट सर्कुलर ट्रैक, और वो आपका टोटल सर्कमफ्रेंस डिवाइडेड बाय द वेलोसिटी, रादर ऑर्बिटल वेलोसिटी आपको मिल जाएगा। अब बेटे देखिए, बहुत ध्यान से देखिएगा एक बार फिर से बेटे, वी कैन रीअरेंज दिस टर्म दैट आई, this is equal to बेटे E into V upon 2 pi and R बेटे। So I we have calculated now, हम M को M is equal to I into A we have already derived this expression also बेटा। बेटे A is this area enclosed by this orbit, it is obviously pi r square then बेटा। Now I can substitute the value of A as well as I in this equation. So let us substitute and try to find out that what the magnetic dipole moment of the atom is due to the orbital motion of the electron only. So I, this is EV upon 2 pi r, और area जो है this is pi r square, 1 pi getting cancelled, 1 r getting cancelled बेटा, और m जो है this is बेटे dear 1/2 into E into V into R. So this is my magnetic dipole moment. लेकिन this is not the scientific term on the right hand side. In order to get it converted into scientific term, dear children, I know that angular momentum L, this is equal to your beta, when we talk about the electron moving in the orbit, angular momentum will be m into v into r. M being the mass of the electron, v its orbital velocity, small r radius of the orbit, we have already indicated. Then बेटे आपको याद होगा बेटे, हमने बोहर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन में कहा था कि जो ऑर्बिटल मोमेंटम है, ऑर्बिटल मोशन है, जो रादर ऑर्बिटल मोशन में जितना भी एंगुलर मोमेंटम आपके इलेक्ट्रॉन को अवेलेबल होगा, दैट विल बी इक्वल टू द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई। बोहर का थर्ड या फोर्थ पोस्टुलेट था, हमने काफी डिटेल में बेटे डिस्कस कर रखा है। सो इट विल बी इक्वल टू n इंटू h अपॉन 2 पाई। बेटे ये जो दोनों टर्म्स हैं मेरे पास, दोनों बेसिकली मैंने बोहर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन जो है, आई हैव पिक्ड दीस टू फ्रॉम देयर ओनली। So I will be comparing these m into v into r, this is equal to nh upon with it, this is here 2 pi। अब ध्यान दीजिएगा, इधर e तो है नहीं, तो I can calculate for this vr। In order to substitute it over here, I will be calculating vr from this particular equation बेटा, और जो vr है it will be nh upon 2 pi and m बेटा। Now I will substitute this VR in this equation बेटे, और आइए इसको सब्स्टिट्यूट करके देखिए कि हमें कितना मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो है ये मिल जाएगा अपने एटम के लिए। सो डियर चिल्ड्रन, m will be equal to your 1/2, e को हमने कुछ भी नहीं किया, it is as such, and VR this is nh upon 2 pi m। So I will have nh अपॉन 2 पाई m बेटा। देखिए डिनोमिनेटर में 2 into 2 इट विल बिकम बेटा 4, और m इज इक्वल टू बेटे योर n e h अपॉन 4 पाई m बेटे। ये जो आपके पास e h अपॉन 4 पाई m आ रहा है, इस फैक्टर को थोड़ा सा फोकस करिएगा बेटे। Let us take into account EH upon 4 pi and m. In this beta E 1.6 into 10 raised power minus 19 coulomb beta। Dear children, this is the charge on the electron, and H beta Planck's constant तो आपको याद ही है,
दिस इज 6.625 10⁻34 जूल सेकेंड्स बेटे, ये वेल नोन कांस्टेंट है आपका। एम बेटे पाई तो चलो इसको क्या लिखना हमने, m इज इक्वल टू 9.1 इंटू 10⁻31 kg। आई जस्ट मीन टू से दैट बेटे कि मैं सारी वैल्यूज जो हैं इनको बेटे सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ, और जब मैं सारी वैल्यूज बेटे सब्स्टिट्यूट कर दूंगा इसको मैं बेटे यहाँ फिर म्यू इंटू बी लिख देता हूँ। दिस म्यू बी इज कॉल्ड बेटे बोहर मैग्नीट्यूड। आई विल से दैट बेटे ये मेरे पास तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, देन ये बेटा मेरे पास बन गया n टाइम्स द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ड्यू टू सिंगल इलेक्ट्रॉन। फिर से बेटे थोड़ा सा फोकस कर लीजिए एक बार फिर से, E इंटू एच अपॉन 4πm, ये एक इलेक्ट्रॉन की वजह से मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो है ये हमें मिल गया है, इसको बोल देते हैं बोहर मैग्नीट्यूड। अगर आपके पास एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो ये टर्म आपके पास n पड़ी है, तो आपके एटम का जो नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मोर देन वन, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हों, आप इस म्यू बी को जो कि एक इलेक्ट्रॉन की वजह से मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई करते चले जाइए, आपको आपके एटम का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बेटे मिल जाएगा। सो डियर स्टूडेंट्स, ये जो टर्म म्यू बी बना है, इसमें जब मैं ये वैल्यूज पुट करूंगा तो न्यूमेरिकल वैल्यू बेटा बोहर मैग्नीट्यूड का जो है मेरे पास, इट विल बेटे टर्न आउट टू बी म्यू बी, दिस इज इक्वल टू बेटा देखिए ई भी आपका चार्ज है और फर्दर मोर एम आपको पता है, सारा कैलकुलेशन के बाद 9.27 10⁻24 न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं भूलना आपने बेटा, सो मैनी एम्पियर मीटर स्क्वायर, दिस इज बेटे बोहर मैग्नीट्यूड। तो आपको बेटे इसके बारे में सीबीएसई ने बेटे बहुत बार प्रीवियसली ये क्वेश्चन पूछा भी है। जनरली वो पूछते कैसे हैं क्वेश्चन में, एक बार आपको स्टेटमेंट पार्ट रिपीट कर देता हूँ। दे विल बी आस्किंग दैट एक्सप्लेन हाउ ए करंट लूप विल बिहेव लाइक ए मैग्नेट। ये तो पहला सिंपल हो गया जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। और अगर सिंपलेस्ट वे में क्वेश्चन पूछना हो, दे मे आस्क दैट हाउ द एटम विल बिहेव लाइक ए मैग्नेटिक डाइपोल, सारा अपने आप आ जाएगा। और otherwise examiner may ask that what do you mean by Bohr magnetone and how you can calculate the magnetic dipole moment of the atom if it is possessing n number of electrons with it. So बेटे in this manner आपका ये जो concept है ये इसी के साथ आपका बेटे चैप्टर भी कंप्लीट हो जाता है। तो I will be now बेटे switching over to my next chapter बेटे EMI and AC। और बच्चों मैं कोशिश करूंगा कि सैटरडे कल और परसों 2 दिन में ही इसको कंप्लीट कर दूं रिवीजन को, और नेक्स्ट वीक फिर डेज कम रह जाएंगे। ऑप्टिक्स आपको करवाना चाहता था मैं, चलिए देखते हैं कैसे करना है, करना तो पड़ेगा, ऑप्टिक्स ज़्यादा जरूरी मैं आपको करवाना चाहता था। एनी हो गए, आइए प्रोसीड करते हैं। EMI एंड AC बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट बेटा। बेसिक टर्म्स में बेटे जल्दी जल्दी से बोल के आपको समझा के आगे चला जाता हूँ, देन आई विल बी फोकसिंग अपॉन सम ऑफ द इम्पोर्टेंट मैथमेटिकल कंसेप्ट्स। बेटे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हमारे पास सबसे बेसिक टर्म आती है मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या चीज़ है? मैग्नेटिक फ्लक्स में बेटे हम जनरली कहते हैं कि टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स लिंक्ड विद ए गिवन सरफेस एरिया, दैट इज कॉल्ड अवर मैग्नेटिक फ्लक्स बेटा। इमेजिन करिए आप बेटे हमारे पास ये कोई एरिया है, सरफेस एरिया है, रादर एरिया को अगर हम बेटे वेक्टर माने तो आई कैन अगेन इंडिकेट यू, मान लीजिए ये मेरे हाथ में एक डायरी है इस तरीके से, अगर मैं इसको लेंथ को ब्रेड से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये एरिया मुझे मिल जाएगा। और अगर मैं एरिया वेक्टर बेटे डिस्कस करना चाहूँ, एरिया एज ए वेक्टर, तो इसको मैं एक नॉर्मल ड्रॉ करूंगा जो कि आउटवर्ड होगा। तो एरिया वेक्टर जब आप मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो लेंथ इनटू ब्रेड्थ हो गया, नो प्रॉब्लम। लेकिन जब आपको एरिया को एज ए वेक्टर ट्रीट करना पड़ेगा, आप इस सरफेस के लिए नॉर्मल ड्रॉ कर लेंगे और वो जो नॉर्मल होगा दैट विल गिव यू एरिया वेक्टर। सो बेटे डियर स्टूडेंट्स, ओवर हियर
आई एम कंसिडरिंग दिस एज एरिया वेक्टर। अगर इसका बेटे एरिया ए है तो एरिया वेक्टर मेरे पास बेटे जो है ये इस नॉर्मल के साथ इंडिकेट कर दिया जाएगा, दिस इज नॉर्मल टू दिस सरफेस बेटा। अब बच्चों बड़े ध्यान से सुनिएगा, जिस रीजन में ये एरिया हमने इमेजिन किया है या ये एरिया मैनेज किया है, उस रीजन में अगर एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हमने अप्लाई कर रखा है एंड दैट इज अप्लाइड सी इन दिस डायरेक्शन, दिस इज द डायरेक्शन in which uniform magnetic field B has been applied. So dear children, we always calculate the number of magnetic lines of force in the direction of the magnetic field. तो वो आपको मैग्नेटिक फ्लक्स देगा और मैग्नेटिक फ्लक्स को हम जनरली फाई से डिनोट करते हैं। और बेटे ये बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर होता है, ये टर्म आई कहाँ से, आइए इसके मैं इसी बैकग्राउंड पे ही जा रहा था बेटा। ये एंगल आपका दोनों में थीटा है, कौन सी दोनों चीजों में, एरिया वेक्टर में और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर में बेटे। नाउ व्हाट वी कैन डू, इस मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर को दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में, डियर चिल्ड्रन वी विल बी स्प्लिटिंग, जो कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आ जाएगा दैट वी कॉल एज बी कॉस थीटा, और जो कंपोनेंट बेटे इस डायरेक्शन में आ जाएगा जिसके साथ थीटा नहीं बना हुआ एंगल, इट विल बी बेटे बी साइन थीटा। इसकी हमारे यहाँ पे कोई इंपॉर्टेंस नहीं है बिकॉज ये आपका फिर नॉर्मल टू दिस एरिया आ जाएगा। आई विल बी जस्ट एक्सप्लेनिंग इट अगेन। तो ये दोनों एक ही डायरेक्शन में है अब, और आपका मैग्नेटिक फ्लक्स कितना बन गया बेटा, एरिया ये वाला मैग्नीट्यूड वाइज इनटू बी कॉस थीटा, दिस इज द कंपोनेंट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। So phi will be equal to B into A into cos of angle theta. Phi will be equal to B vector dot A vector, because ये डॉट प्रोडक्ट है then बेटा this must be a scalar quantity, ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं हो सकता, मैग्नेटिक फ्लक्स बेटे स्केलर क्वांटिटी है। डियर चिल्ड्रन रिगार्डिंग द यूनिट्स बेटा, मैग्नेटिक फ्लक्स जो है ये वेबर इसका जो है एसआई सिस्टम में यूनिट है, मैक्सवेल सीजीएस सिस्टम में है। याद रखिए 1 वेबर 10⁻⁸ मैक्सवेल्स के बराबर होता है और 1 मैक्सवेल 10⁻⁻1 वेबर आ जाएगा। अकॉर्डिंगली यू कैन मैनेज द थिंग्स बेटे। तो हमारा ये तो चलिए बेटे बेसिक सा कंसेप्ट था, आपने हो सकता है कि कहीं लोअर क्लासेस में भी थोड़ा बहुत इसके बारे में हमने बात की हो 10th वगैरह में। नाउ बेटे जो मेरे पास फैराडेज एक्सपेरिमेंट्स हैं, फैराडेज ऑब्जर्वेशंस हैं, फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हैं, लेट अस बेटे फोकस अपॉन दीज बेसिक लॉज कि ये कौन कौन से लॉज हैं। मैं जल्दी जल्दी में करा के आपको आगे निकल जाऊंगा बेटे, ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, आपको थोड़ा रिफ्रेश ही कर रहा हूँ मैं कि ये आइडियाज हमने डिस्कस कर रखे हैं। फैराडेज बेटा, फैराडेज laws of electromagnetic induction। इमेजिन बेटा हमारे पास ये कॉइल है, कॉपर का कॉइल है रादर, इस कॉपर के कॉइल के साथ बेटे मैंने एक गैल्वेनोमीटर अटैच किया। सी दिस इज द गैल्वेनोमीटर दैट इज बीइंग अटैच्ड टू दिस कॉपर कॉइल। व्हाट वी कैन फर्दर डू इज दैट बेटे ये मैग्नेट है हमारे पास, मैग्नेट का ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। जरा डिटेल में समझ लीजिएगा, 2 मिनट लूंगा आपके, ज्यादा नहीं। जब तक आप मैग्नेट को बेटे स्टेशनरी रखे हुए हैं, देयर इज नो डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर बिकॉज मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा। और मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने का बेटे क्या, वी विल बी सेइंग दैट बेटे am I audible to all बेटा? Yes बेटे। तो ओके बेटे, नाइस, थैंक यू बेटा। नाउ बेटे फिर yes बेटे, there was some technical type of problem I think I couldn't understand but it is yes बेटे। magnet was there available with us बेटे and we were to take
the magnet towards the coil. But before that, we must know that what Faraday's laws of electromagnetic induction are. Which is Faraday's laws specify that it is whenever there is relative motion between the coil and the magnet, your galvanometer will be indicating deflection. Why it indicates deflection? Just because there is change in the magnetic flux linked with this particular area of the coil. So when the magnetic flux linked with this area will be changing, when it will be changing, because we know that the magnetic lines of force, they start from the north pole, they terminate at the south pole. We are bringing this in, and as a result of that, the magnetic field linked with this is changing, and with a magnetic flux phi is equal to B into A into cos of angle theta. As B is changing, your flux will be changing, and Faraday's laws say that EMF will be developed in this coil. This is minus d phi by dt. This minus sign indicate Lenz's law. Lenz's law states that the induced EMF produced in this coil is of such a nature that it opposes its own cause. Now, बेटे how this can oppose its own cause? बड़े ध्यान से सुनिएगा. इस कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होने का रीजन इस मैग्नेट का इस तरफ मूवमेंट है. अब ये कॉइल इस मूवमेंट को कैसे अपोज करेगी? जब ये आप इसको मैग्नेट को इसके नजदीक लेके आ रहे हो बेटा, तो ये वाला जो फेस है इसमें एक एंटी क्लॉकवाइज सेंस में करंट डेवलप हो जाएगा, और वो करंट क्या करेगा? इस फेस को नॉर्थ पोल जो है ये बना देगा. नॉर्थ विल रिपेल दिस नॉर्थ, और आपको इस रिपल्शन के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा, और वही वर्क डन आपका इस इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट हो. सेकेंडली देखिए क्या होता है. व्हेन यू टेक दिस बैक, आप इसको पीछे लेके जा रहे हो, देन बेटे व्हाट हैपेंस, आपकी ये जो सेम कॉइल है, सेम कॉइल में एक बेटे क्लॉकवाइज सेंस में करंट जो है ये डेवलप हो जाएगा, और जो क्लॉकवाइज सेंस में करंट दैट इज गेटिंग डेवलप, वो इसको साउथ पोल बना देगा, साउथ नॉर्थ को अट्रैक्ट करेगा. आप इसको वापस लेके जा रहे थे, बट नॉर्थ पोल इज बीइंग अट्रैक्टेड बाय द साउथ पोल. अगेन कॉइल क्या कर रहा है? मैग्नेट के आउटवर्ड मोशन को अपोज कर रहा है, मतलब अपने ही कॉज को अपोज कर रहा है. So, dear students, in this way, when the magnetic flux in this way will be changing due to all these your work, it is required to be performed, required to be done, और वही work done जो है electrical energy में convert होगा. One point more बेटे, आपका जो Lenz's law है, it is बेटे well in accordance with the principle of conservation of energy. That is principle of conservation of energy holds good. कैसे? जब आप मैग्नेट को लेके आ रहे हो, आपको वर्क करना पड़ रहा है अगेंस्ट द रिपल्शन ऑफर्ड बाय द कॉइल. जब आप इसको वापस लेके जा रहे हो, अगेन आपको वर्क करना पड़ रहा है अगेंस्ट दिस अट्रैक्शन. सो जितना भी आप मैकेनिकल वर्क कर रहे हो, दैट वर्क डन इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, और वी कैन से दैट इलेक्ट्रिकल एनर्जी अपने आप में बन गई है. आपने जो मैकेनिकल वर्क किया है, दैट वर्क इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू द एनर्जी ओनली. सो तीन बातें हमने की हैं. फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, उनके अकॉर्डिंगली इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होती है जब रिलेटिव मोशन होगा. और सेकंड लॉ आपको कहता है इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स. और उसके बाद हमने बात की है लेंज़ेस लॉ की. Lenz's law which states that the induced EMF it opposes its own cause. तीसरी बात हमने की है, जो आपका Lenz's law है, it is always in accordance with the conservation of the energy. So in this manner we can have these all things which are arranged. Then we accept this electric EMF voltage. Let me talk about the electric current generated in this coil. If I divide this EMF developed in this beta by the resistance of this coil, I will get I, electric current.
that how much electric current is moving in the given coil. So in order to calculate the electric current, this EMF, it must be divided by the resistance of this part of the connecting wire. So dear students, induced current will be equal to minus 1 by R into d phi by dt. So this is your induced EMF, this is your induced current. Induced current can be obtained by dividing the induced EMF by the resistance of this part of the connecting wire or the coil. असल में coil क्या है? एक आपने कॉपर की वायर को ऐसे सर्कुलर शेप देकर फोल्ड करके रखा हुआ है, तो आप जानते हैं जो रेजिस्टेंस आर होगा बेटा, इट विल बी इक्वल टू रो इनटू एल बाई ए। जितना ज्यादा आपका लेंथ होगा उतना ज्यादा रेजिस्टेंस ऑफर होगा उसको कॉइल की अंदर आपके इलेक्ट्रिक करंट को, और आप इस हिसाब से अपना आई जो है ये निकाल सकते हैं। सो बेटे ये कुछ छोटे छोटे बेसिक कंसेप्ट थे, तो ज्यादा टाइम इस पे ना डिवोट करते हुए, नाउ बेटे आई एम फोकसिंग अपॉन द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज माय मोशनल ईएमएफ। लेट अस फोकस अपॉन motional EMF, that what do we mean by this motional EMF and how it is getting generated. Motional EMF. Dear students, before I start with this motional EMF, बड़े ध्यान से देखिएगा, EMF हमने अभी अभी कहा है माइनस डी फाई ओवर डी टी। उत्तर अगर मैं फाई की वैल्यू पुट कर दूं, EMF will be equal to ddt of phi was your dA cos theta। अब EMF बेटे कैसे हमें मिलेगी? यहाँ तो आप B चेंज कर दो, मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर दो। वो हमने कैसे चेंज किया था? मान लीजिए ये कॉइल है मेरा हैंड, और हम इसको नजदीक या पास लेके जा रहे थे, फील्ड आपका चेंज हो रहा। दूसरी क्या पॉसिबिलिटी है? यहाँ तो आप पहला फील्ड चेंज कर दो, या सेकंड स्टेप में आप एरिया बदल दो, आप अपनी कॉइल को बड़ी कर दो, छोटी कर दो, आपको यू। तो तीसरा क्या है? आप अपनी कॉइल का ओरिएंटेशन चेंज कर दीजिए, आप एंगल थीटा चेंज कर दोगे। कॉइल अगर आपका ऐसे बड़ा, आप टिल्ट कर दो थोड़ा सा, एंगल चेंज हो गया, अपने आप फ्लक्स चेंज हो जाएगा। इस तरीके से कॉइल है, आप ऐसे 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 करते रहो, बार बार आपका थीटा बदलता रहेगा, फ्लक्स आपका चेंज होता रहेगा, ईएमएफ प्रोड्यूस होती रहेगी। तीन तरीके। पहला हमने डिस्कस किया मैग्नेटिक मोशन का। मोशनल ईएमएफ में हम एरिया को वेरी कर देते हैं। लेट अस सी हाउ इट इज डन बेटा। इन दिस केस इमेजिन कर लीजिए हमने एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द ब्लैक बोर्ड अप्लाई कर रखा है। डियर स्टूडेंट्स, दिस इज अ क्रॉस साइन इंडिकेटिंग यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द ब्लैक बोर्ड इन डायरेक्टेड एरिया। इसके अंदर आपने एक बेटे ये कॉइल रखी हुई है, रेक्टेंगुलर कॉइल है, और आप रादर अगर देखें, दिस होल कॉइल इज प्रेजेंट इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड। होल एरिया ऑफ द कॉइल इज कनेक्टेड विद दिस मैग्नेटिक फील्ड, एंड लेट द मैग्नेटिक फील्ड बी बी, एंड लेट द एरिया ऑफ दिस कॉइल बी बेटे इक्वल टू ए। नाउ ये आपका जो पैरामीटर है कॉइल का, लेट अस इमेजिन दैट दिस इज द लेंथ ऑफ दिस कॉइल, और आपने इस कॉइल को इस मैग्नेटिक फील्ड से बाहर की तरफ विद वेलोसिटी v मूव करवा दिया। अब आइए देखें आगे क्या होगा। ये आपका सेम कॉइल वंस अगेन, एंड ये सेम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, एंड बेटा फर्दर मोर व्हाट वी डू इज दैट हमने इतना हिस्सा इसका बाहर निकाल दिया। ये आपका कॉइल था रेक्टेंगुलर शेप में जो था, इसकी वेलोसिटी v थी बाहर जाने की, इसको आपने लेंथ बोला हुआ है, यहां तक आपका मैग्नेटिक फील्ड है सिर्फ, एंड इमेजिन दैट दिस इज द डिस्टेंस डेल्टा s बाय विच द कॉइल इज मूव्ड आउट। इतना हिस्सा आपके कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड के अंदर नहीं है, बाहर चला गया। इसका मतलब क्या हुआ? आपने एरिया बदल दिया जो आपका मैग्नेटिक फील्ड के साथ लिंक हुआ पड़ा था। अगर आप एरिया बदलोगे तो अपने आप ईएमएफ आपके इस रेक्टेंगुलर कॉइल में बेटे इंड्यूस होगा, और अगर इंड्यूस होगा, लेट अस सी व्हाट टाइप ऑफ एक्सप्रेशन वी विल बी हैविंग विद अस बेटा। लेट अस फोकस अपॉन दिस।
एरिया अब आपका कम हो रहा है. I will say that this area is then minus L into delta S बेटा. माइनस साइन बच्चों मैंने क्यों डाला? क्योंकि एरिया कम हो रहा है, कमी आई है एरिया में, डिक्रीज हुआ है. और मैग्नेटिक फ्लक्स बच्चों कितना हुआ? B into A. दिस इज माइनस B into A is your L and delta S बेटा. और dear children, induced EMF is minus d phi by dt. I will substitute minus ddt of minus VL and delta S beta. Or let us rearrange these mathematical terms beta. We will be having induced EMF E is minus minus plus BL डेल्टा एस अपॉन डी टी. आप इसको भी यहाँ फिर डेल्टा टी लिख लो, आपका बिल्कुल बेटा यहाँ पे ये स्मूथली हो जाएगा मैनेज. दिस इज बी एल डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी. इट इज बी एल एंड वी. दिस इज द इंड्यूस्ड ईएमएफ. इसी को मोशनल ईएमएफ बोलते हैं. मोशनल क्यों? क्योंकि इट इज ड्यू टू द मोशन ऑफ द कॉइल इन द आउटवर्ड डायरेक्शन. और अगर बेटे मैं यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट निकालना चाहूँ, इलेक्ट्रिक करंट विल बी इक्वल टू ईएमएफ अपॉन आर, मोशनल ईएमएफ अपॉन आर. आप करंट वगैरह निकाल सकते हैं. कई बार चलिए वैल्यू पुट करके देख लेते हैं इसकी भी. अगर आप वैल्यू पुट कर देंगे, आपके पास बेटे जो इलेक्ट्रिक करंट है, इट विल बी इक्वल टू बी इंटू एल इंटू वी अपॉन आर, आर बीइंग द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल. बेटे 2 मिनट आपके और लूंगा मैं इस केस में, अदरवाइज बेल हैज गॉन. व्हेन वी रोटेट ए कंडक्टर इन ए मैग्नेटिक फील्ड, आपका थीटा बदले. जैसे मैं आपको बता रहा था कि 3 तरीके हैं, या तो आप बी बदल दो, या आप एरिया बदल दो, और थर्ड वे में या आप अपना ओरिएंटेशन बदल दीजिए. अब मैंने क्या अज्यूम किया है कि इमेजिन कर लो मेरे पास जैसे ये एक कंडक्टर है, ये इसको ये पूरा ब्लैक बोर्ड मैग्नेटिक फील्ड इंडिकेट करता है. मान लीजिए इसकी मैं ओरिएंटेशन अगर ऐसे ऐसे बदलता जाऊं, इसको रोटेट कर दूं मैग्नेटिक फील्ड में, देन बेटे व्हाट विल हैपन? रोटेट करने से इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगी. मैं वो केस यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ. लेट अस डियर चिल्ड्रन फोकस अपॉन दिस बेटा. हार्डली इट विल टेक ए मिनट, देन यू विल बी फ्री. दिस इज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बेटा. और इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में आपने ये बेटा अपना वायर कंडक्टर रोटेट कर दिया. इसका लेंथ मान लो L है. जब आप रोटेट करोगे तो इट विल फॉलो दिस टाइप ऑफ सर्कुलर पाथ. ये सर्कुलर पाथ फॉलो करता हुआ ये मूव कर जाएगा. L इसका लेंथ है बेटा, और इसने मान लीजिए B पॉइंट तक पहुंच गया A पॉइंट से, और यहाँ पे इसने एंगल अल्फा ट्रेस किया, या थीटा कह लो, अल्फा नाम करो, थीटा कर दिया. एरिया इस केस में ये छोटी सी ट्रायंगल का एरिया कितना होगा? इट विल बी 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है. बेस आपका L के बराबर है, लेंथ के बराबर है. इट विल बी 1/2 इंटू L. थोड़ा सा देखिए वंस अगेन, कुछ इस तरीके से था ये L, ये भी L, और ये आपका एंगल यहाँ पे बेटे थीटा आपने कहा था. दिस इज आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस. सो ये डिस्टेंस आपकी कवर किया जो है, इसी को आपने आई टेक बोला है. h upon L is equal to theta and h is equal to L into theta. So it will be 1/2. बेस आपका लेंथ के बराबर है, ये आपका थीटा इंटू L आ गया बेटा. दिस इज द एरिया ट्रेस्ड बाय योर कंडक्टर इन स्मॉल टाइम t. EMF जो है, फ्लक्स की बात कर लीजिए. फ्लक्स जो है, दिस इज B इंटू A, B एंड 1/2 L स्क्वायर थीटा. और EMF कितना हो जाएगा? माइनस डी फाई बाई डी टी. एंड EMF इज माइनस डी डी टी ऑफ योर हाफ B L स्क्वायर थीटा. एंड इट इज मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल टू 1/2 B L स्क्वायर डी थीटा बाई डी टी. डी थीटा बाई डी टी एंगुलर वेलोसिटी आपको दे देगा. सो बेटे डियर चिल्ड्रन, आई विल बी हैविंग EMF इज इक्वल टू 1/2 B L square into omega.
सो बेटा एल आपकी कंडक्टर का लेंथ था, ओमेगा इसका एंगुलर वेलोसिटी, बी मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ। सो ये केस था जब आपने अपनी कंडक्टर को रोटेट कर दिया। जैसे आपके पास, इमेजिन कर लीजिए मेरे पास जैसे पेन है, इसको मैं फील्ड मैग्नेटिक फील्ड में ऐसे ऐसे रोटेट कर देता हूँ ऐसे। जब मैं रोटेट करता जाऊंगा, इसमें इतना इंड्यूस ईएमएफ डेवलप हो जाएगा। सो दिस इज हाउ वी हैव टू प्रोसीड विद दिस ऑल। बेटे मुझे यशदीप, ओम, मिहिर, मानव, क्षितिज, खुशी, गरिमा, फिजा, भाभी एक बार हल्का सा कमेंट करके बता दीजिए, इज दिस क्लियर अप टू दिस ऑल बेटे, सो दैट कि नेक्स्ट टाइम आगे से स्टार्ट कर सकते हैं। इज इट क्लियर टू ऑल अप टू दिस पॉइंट बेटे? थैंक यू बेटे ऑल, थैंक यू, वेल हैज गॉन। ओके बेटे, गुड, थैंक यू ऑल बेटा।